السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں نازیہ خان۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں سمینہ رانا۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان اور ازبکستان تجارت 40 کروڑ سے 2 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر متفق۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے پر بھی عمل درآمد کا فیصلہ۔ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں نیا باب۔ تاشقند میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت میرزایوف کے درمیان 1-on-1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر مذاکرات۔ معیشت، مواصلات، معدنیات، سیاحت، زراعت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ Today, I want to assure you that I'll work wholeheartedly along with my great team. We have taken the first step. We are marching in the right direction. It is just the beginning. It is just the start of the path towards economic growth. ازبکستان کے ساتھ بااعتماد شراکت داری کو تصویراتی پارٹنرشپ میں بدلنا ہے۔ شاہراہ ریشم سے شروع ہونے والے تاریخی تعلقات نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ازبکستان کے ساتھ تعلقات میں وسعت لانے کا عزم۔ مواصلاتی روابط اور تجارت کا فروغ خطے کی ترقی کے لیے اہم۔ افغانستان میں امن و استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ازبک صدر شوکت میرزایوف کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ Mutual trade turnover has exceeded 400 million, and we have the plans to increase that to $2 billion. In many big directions, we will do a lot of work. The number of the joint ventures has reached 130. Trade houses have been opened in Karachi and Tashkent. Air travel has been launched between Tashkent and Lahore. ازبک صدر کا پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کونسل فعال کرنے کا اعلان۔ سیاحت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں معاونت بڑھائی جائے گی۔ سرمایہ کاری کا فروغ وقت کا تقاضا۔ تاشقند اور لاہور کے درمیان پروازیں کاروباری اور سیاحتی روابط کے لیے اہم۔ خطے میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ ازبکستان کے صدر شوکت میرزایوف۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 12 معاہدے۔ تاشقند میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ازبک صدر کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط۔ دفاع اور داخلہ کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزے کے استثناء کا معاہدہ۔ سائنس اور تکنیکی شعبوں میں بھی تعاون کے معاہدے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور ازبکستان کی اطلاعات ایجنسی کے درمیان تعاون کی دستاویز کا تبادلہ۔ تخفیف غربت، فنی تربیت، فورن سروس اکیڈمی اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے۔ خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے علاقائی رابطہ کا فروغ ناگزیر۔ پاکستان میں سستی توانائی کے حصول کے لیے اقدامات جاری۔ سرمایہ کاری کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کا قیام۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں۔ SIFC سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ، IT، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع۔ خطے کے ممالک گوادر اور پورٹ قاسم سے کاروباری سرگرمیاں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تاشقند میں پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب۔ ازبکستان باہمی شراکت داری کے مواقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ ازبک صدر کا عزم۔ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں پاکستان میں معاشی استحکام آیا۔ ہوا اور شمسی ذرائع سے توانائی کا حصول ممکن بنایا جائے گا۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ازبکستان کے صدر شوکت میرزایوف کا بزنس فورم سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ۔ تاشقند کے کانگریس سینٹر میں تقریب کا انعقاد۔ صدر شوکت میرزایوف نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی وزیر اعظم کو سلامی، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں
دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ازبکستان کے صدر نے وزیراعظم سے اپنی کابینہ کا تعارف کرایا۔ بعد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے اعلیٰ سطح وفد کا ازبکستان کے صدر سے تعارف کرایا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ازبکستان عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز، دورہ وسط ایشیائی ملکوں کے روابط اور تجارت بڑھانے کے لیے اہم قرار۔ دونوں ملکوں کی قیادت کی جانب سے تعاون میں اضافے کے لیے اقدامات کی بھرپور پذیرائی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا تاشقند پہنچنے پر پرتپاک استقبال، اخبارات کی زینت، خصوصی کوریج۔ تاشقند میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی تعاون سمیت معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا مستقبل میں تعلقات کی مزید مضبوطی کے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ انتہائی کامیاب رہا، دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ ریل منصوبے سے خطے میں معاشی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی، روڈ اینڈ ریل کے ذریعے روابط بڑھا کر تجارت کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور عبدالعلیم خان کی تاشقند میں میڈیا سے گفتگو۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا کل پہلا دورہ پاکستان، وزراء، سینئر حکام اور کاروباری شخصیات کا وفد ولی عہد کے ہمراہ۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں شیڈیول، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی، معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ معاشی اصلاحات کے مثبت اثرات عوام کی زندگیوں پر نمایاں، پالیسیز پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے وضع کی گئی۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے پر برآمدات پر مبنی معیشت کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی۔ آمدنی اور اخراجات میں توازن ناگزیر، معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ نیا محکمہ ڈرون سرویلنس سمیت جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہوں گے۔ عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وسائل کی کمی آڑے نہیں آنے دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ قذافی اسٹیڈیم میں That's a beautiful strike. Oh, lovely check drives. Gives himself room and up and over mid-off. It's effectively gone out of the ground. Oh, that's a terrific shot. قذافی اسٹیڈیم میں ایک مرتبہ پھر چوکوں اور چھکوں کی بارش، افغانستان کا انگلینڈ کو 326 رنز کا ہدف، 50 اوورز میں 7 وکٹوں پر 325 رنز بنا دیے۔ آئی سی سی ایونٹس میں افغانستان کی جانب سے اب تک کا یہ سب سے بڑا ٹوٹل، 12 چھکے اور 19 چوکے لگائے۔ انگلینڈ کی بیٹنگ جاری، میچ دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ There we go. That's a beautiful strike. Oh, lovely check drives. Gives himself room and up and over mid-off. Gives himself room and up and over mid-off. That is... افغانستان کے اوپنر ابراہیم زدران کی انگلینڈ کے خلاف دھواں دھار بیٹنگ، 146 گیندوں پر 177 رنز کی اننگز۔ افغانستان اور چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ کا سب سے بڑا انفرادی سکور، 6 چھکے 12 چوکے بھی لگائے۔ چیمپئنز ٹرافی میں اپنا آخری میچ کھیلنے کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل۔
मैच दिन 2 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दोनों टीमें 2-2 मैचेस हारने के बाद पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। कोई खिलाड़ी टीम में बगैर परफॉर्मेंस नहीं आया। जब टीम तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेलती तो सबसे ज्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। नौजवान खिलाड़ियों को मजीद मौके और तजुर्बा देना होगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ज़री ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक के सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट का फायदा मिलेगा। पावर डिवीजन का नेपरा को खत। इकदाम से बिजली सारिफीन के माहाला बिल्स में मजीद कमी आएगी। विफाकी वजीर अवैस लगारी। पुलवामा ड्रामा, भारतीय हुकूमत और फजाइया की नाअहली, बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फजाइया ने 27 फरवरी को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भांडा फोड़ दिया। बलोचिस्तान को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को करारा जवाब। एक बार फिर दौरे बलोचिस्तान की दावत। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक उमर अयूब के बयानात पर वजीर आला सरफराज बुगटी का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। जल्द 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। हमास की तस्दीक। इसराइल गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए तैयार। अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात में इसराइल की शिरकत की तस्दीक। सियोनी फोर्सेस का शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में फौजी मरकज पर हमला, 4 अफराद जाँ बहक। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फौजी तैयारा रिहायशी इमारत पर गिरकर तबाह। हादसे में सीनियर फौजी अफसरान समेत 46 अफराद हलाक और 10 जख्मी। गिरने से कबल तैयारे के पिछले हिस्से में आग लग गई। तैयारा फनी खराबी के सबब गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई तहकीकात। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां मजीद तेज। छापों, जबरी गिरफ्तारियों और दौरान हिरासत गुमशुदगियों में इजाफे का खदशा। हक खुद इरादियत के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। और माह रमजान से कबल बारिश ही बारिश। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बादल बरसते रहे। शहर बेमिसाल की खूबसूरती मजीद निखर गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर मुकामात पर हल्की बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। साफ रहिए। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
नाज़रीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने बाहमी तिजारती हजम $2 अरब पर पहुंचाने, ट्रांजिट ट्रेड, तरजीही तिजारती मुआहदे पर मौसर अमल दरामद, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और दोनों मुल्कों की कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान ताशकंद में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नबीर अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान ताशकंद में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई रवाबत के फ़रोग़, बाहमी ताउन, बिलखसूस तिजारत, सियाहत, तवानाई और सकाफ़ती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सफ़ारती ताल्लुकात के 33 बरस के दौरान बाहमी ताउन पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। क़यादत ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती हजम को $2 अरब तक पहुँचाने, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही तजारती मुआहदे पर मौसर अमल दरामद समेत दोनों मुल्कों के ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और पाकिस्तान व उज़्बेकिस्तान की कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया और मंसूबे पर अमल दरामद के अज़्म का भी इआदा किया। बातचीत में सियाहत के फ़रोग़, बिलखसूस तरमीज़, बुखारा, लाहौर और कराची के दरमियान ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर बैनुल अक़वामी मसाइल के हल के लिए आलमी तंजीमों, बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को पायदार तरक्की और आलमी सतह पर अमन और सलामती के हसूल के लिए फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात हुए, जिसमें तिजारत, सियाहत, तवानाई, तालीम, सकाफत, इलाकाई रवाबत और दिफाई शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करने के हवाले से मौजूद इस्तेदाद पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए अमली इक़दामात तजवीज़ किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी और सकाफती रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तजारती और मुआशी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इलाकाई रवाबत के शोबे में मुश्तरका मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने दो तरफा मजबूत शराकत दारी को दोनों मुल्कों और पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए फायदेमंद करार दिया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उज़्बेक सदर ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। उन्होंने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद नबीर अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का आला सतह स्ट्रेटेजिक काउंसिल फाल करने और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए रोड मैप मुरतब करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाहराह रेशम से शुरू होने वाले तारीखी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल इत्मीनान शराकतदार है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। We are marching in the right direction. I'll work wholeheartedly along with my great team. We will expand our tourism, industry, investment, agriculture, trade, increase our flights. That's how find the true connectivity. This will be a great connection between the two countries. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तजारत और सरमायाकारी दोनों मुल्कों के मफाद में है। तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका अज़्म है। Engagement with the Republic of Uzbekistan for a lasting, mutually beneficial cooperation in the future for the prosperity of our peoples. अफगानिस्तान में अमन को नागजीर करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। Emphasizing for a peaceful and stable Afghanistan, for a regional connectivity, peace and progress, Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country including Pakistan.
वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल के हवाले से कहा कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इस अज़्म का अदा किया कि मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की दोस्ती को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और मौके से फायदा उठाना वक्त की जरूरत है। The Intergovernmental Commission is working effectively. A large delegation of leading Pakistani companies has also arrived in our capital. This is historical visit is an important event that will open a new chapter in the expansion of our strategic partnership. उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम को $2 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। Mutual trade turnover has exceeded 400 million, and we have the plans to increase that to $2 billion. The number of the joint ventures has reached 130. Trade houses have been opened in Karachi and Tashkent. Air travel has been launched between Tashkent and Lahore. इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत किए। इससे पहले पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों के तबादलों की तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 11 से ज़ायद मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहिदों में दाखिली अमूर, अस्करी इंटेलिजेंस, साइंटिफिक और तकनीकी शोबे और सफारती पासपोर्ट पर वीजे के इस्तिस्ना का मुआहिदा शामिल है। दोनों मुल्कों की सरकारी खबर रसाई एजेंसियों APP और UZA के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए भी मुआहिदा तय पाया और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और उज़्बेक वजारत रोजगार के माबैन मुआहिदा हुआ, जबकि लाहौर और ताशकंद की शहरी तरक्की के लिए भी मुफाहमत हुई। नौजवानों से मुतल्लिक मुआहिदे और आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के क़याम पर भी इत्तफाक किया गया। इसके साथ साथ NLC के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने भी मुआहिदे पर दस्तखत किए। ये मुआहिदे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुँचाने और तरक्की की राह पर गामजन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दो तरफा शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर करने के आज़म का इरादा किया है। ताशकंद में मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों की शराकतदारी मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल की नई राहें खोलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम में दोनों मुल्कों से 150 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। IT, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात और मुश्तरका मनसूबों का जायजा लिया गया। फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट, IT, ज़राअत समेत दूसरे शोबों में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मराहत दे रहे हैं। उज़्बेकिस्तान की कारोबारी बरादरी मौके से फ़ायदा उठाए। Our mining sector has to progress and develop, very rapidly. In energy, we can join hands together. Information technology and agriculture. I think these are the areas. Consider these opportunities and take it up in all seriousness. And I want to assure you, as the Chief Executive Officer of Pakistan, to serve you, your business, your interest, and Pakistan's cause, and promote our joint cause of Uzbekistan and Pakistan. This is what we are here for. वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए रवाबित का फरोग जरूरी है। वस्त एशियाई रियासतों तक राहदारी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट, brother President is deeply committed to undertake this project, and I can assure you that this project will be a game changer. It will be a corridor from Uzbekistan via Afghanistan to Pakistan, and this will transform trade in the entire region. मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आज़म का इरादा करते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने कहा कि पाकिस्तान में माशी तरक्की के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशें काबिले सताइश हैं। A lot of achievements we witnessed in Pakistan. Really glad to see those achievements. The amount of the
investments flow to the country, the increase of the GDP, the fact that they were able to rid off the inflation. And from a deep root of my heart, I'd like to thank and congratulate personally Mr. Prime Minister, His Excellency and his team for those achievements. उज़्बेक सदर ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मौजूद मौक़े से इस्तिफ़ादा करेंगे। तिजारत से रवाबत तक ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता कर रहे हैं। It's time to have this partnership and we came to the conclusion that in those high levels we will be supporting each other. We came to the conclusion that we will increase the trade volume to 2 billion. We have a great market in Pakistan and in Uzbekistan. सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह शराकतदारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से ताउन की नई राहें खुलेंगी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में कांग्रेस सेंटर ताशकंद में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने कांग्रेस सेंटर में वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। तकरीब की तफसील बता रहे हैं ताशकंद से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर हारून इलाही तूर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब कांग्रेस सेंटर ताशकंद में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कांग्रेस सेंटर पहुंचे तो उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने उनका मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफिया और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने खुशगवार माहौल में तहनीती जुमलों का तबादला किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपनी काबीना के अरकान का तारफ़ करवाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी उनके हमरा आला सतह वफ्द का तारफ़ उज़्बेकिस्तान के सदर से करवाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर तजारत जाम कमाल खान, वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान और मुआविन ख़ुसूसी तारक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में वालिहाना और पुरतपाक इस्तकबाल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के शानदार मुस्तकबिल की अक्कासी करता है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के कामयाब दौरे के बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा, दोनों ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म के दौरे को पाकिस्तान, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के कौमी जरीदों के साथ साथ बैनुल अक़वामी अख़बारात और वेबसाइट्स पर खुसूसी कवरेज दी गई। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। आलमी मीडिया ने उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इलाकाई रवाबित, ख़ुसूसन तिजारत, दफ़ा, सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम, तालीम और सरमायाकारी के शोबों में फ़रोग़ को खित्ते की तरक्की में एक नए बाब का आगाज़ करार दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये दौरा वस्ती एशिया में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़्तिसादी सफारतकारी में अहम किरदार अदा करेगा। दारुल हलाल के मुताबिक दौरे से इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन में इजाफा होगा। उज़्बेकिस्तान के रोजनामे यूज़ी डेली के मुताबिक उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात न सिर्फ मुस्तहकम होंगे बल्कि दोनों ममालिक के दौरान तस्वीराती शराकतदारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। टेक्सटाइल, लेदर, ज़राअत,
फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबों में तजारत में मजीद इजाफा होगा। सेंट्रल लाइन न्यूज ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे की अहमियत को नुमाया करते हुए दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी करार दिया। दिल्ली नेशनल कोरियर के मुताबिक पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी और सकाफती रवाबत में बेहतरी आएगी। जरीदे अज़ारटेक ने दौरे को खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। लिंक न्यूज और दीगर जरीदों ने भी वज़ीर-ए-आज़म को नुमाया कवरेज दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा न सिर्फ दोनों मुल्कों के तजारती हुजम में इजाफे बल्कि अवामी रवाबत के फरोग में अहम संग मील साबित होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से मुलाकात की। इस मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई ताउन समेत मौशी तरक्की के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की माबैन मजबूत ताल्लुकात और दोस्ती को सराहा। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के कामयाब दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म को ताशकंद के हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और मेयर ताशकंद ने अलविदा किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि दौरे से दो दफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वस्त एशियाई रियासतों आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हुए तो ताशकंद के हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव, ताशकंद के मेयर शौकत उमर ज़ाकोफ, पाकिस्तान में उज़्बेक सफ़ीर अली शेर तख्तायफ और पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक समेत आला सफारती और सरकारी हुकाम ने उन्हें अलविदा किया। इस मौके पर उज़्बेक फौज का चाको चौबंद दस्ता भी मौजूद था। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जेहत मिलेगी। The historical significance of this visit lies in enhancing the trade volume between the two countries, promoting culture, promoting the religious tourism, promoting further the economic ties. Connectivity is most important. You see, connecting the two countries through rail or road links is something that can enhance the cooperation and trade in the entire region. वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के विजन और मुदब्बिराना क़यादत को सराहते हुए उन्हें पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान रोड और रेल के जरिए रवाबित बढ़ाकर तिजारत को फ़रोग़ देना है, जो इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद है। We have to focus on the transit train and we have to work I think with a faster pace on this project. Same goes for our road connectivity. The Prime Minister and the President emphasized on the bilateral trade. We will have a lot of I think potential. दौरे में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की कारोबारी शख्सियात ने बाहमी कारोबार के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उज़्बेक सरमायाकारों को यकीन दिलाया गया कि उन्हें कारोबार के लिए मुकम्मल सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान कल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वली अहद के हमरा वज़रा, सीनियर हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी होगा। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में सरमायाकारी और माशी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। दौरे में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। दो तरफा मुआहिदे तवील मुद्दती ताउन के पहले से मौजूद फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत करेंगे। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा मजबूत ताल्लुकात के आज़म का अक्कास है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ग़ारी का ज़री ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए अहम कदम। माहाना फ्यूल कीमत में एडजस्टमेंट की कमी का फ़ायदा अब ज़री ट्यूबवेल और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को भी मिलेगा। पावर डिवीजन ने नेपरा को इससे मुताल्लिक़ खत लिख दिया है। फ्यूल कॉस्ट में कमी को ज़री ट्यूबवेल और 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को देने से इनके माहाना बिलों में मजीद कमी आएगी। इससे पहले 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फ़ायदा जून 2015 से रोक दिया गया था, जबकि दिसंबर 2010 से ज़री ट्यूबवेल को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी खत्म कर दी गई थी। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा।
लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त हर वक्त। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में रमज़ान और ईद के दौरान अशिया ज़रूरियात की कीमतों के इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में कीमतों को कंट्रोल रखने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने हिदायत की कि रमज़ान के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत रमज़ान और ईद के दौरान आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। SIFC के ताउन से हुकूमती सतह पर सनती शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काविशें जारी हैं। पाकिस्तान का सनती शोबा नौजवान, हुनरमंद और सस्ती लेबर फोर्स की वजह से खित्ते में मुसाबकती हैसियत का हामिल है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का बुनियादी मकसद बरामदात में इजाफा, तजारती खसारे को कम करना और इक़्तिसादी सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना है। जोन्स के क़याम का मकसद मगरबी ममालिक समेत आलमी मंडी में 3 अरब सार्फिन तक बराह रास्त रसाई है। जोन्स के क़याम से सनती तरक्की समेत 2028 तक 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ मुतवक्किल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमती इस्लाहात के बायस मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेशावर में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि FPR में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। अदनान शाह की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में सनतकारों और ताजरों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आइंदा चंद माह में टैक्स पॉलिसी को फ़ाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए शफाफियत बढ़ाई जा रही है ताकि कारोबारी तबके को सहूलत मिले। टेक्नोलॉजी है, देखिए टेक्नोलॉजी का सिर्फ मकसद ये है कि आपके लिए सबके लिए सहूलत कायम की जाए, ह्यूमन इंटरवेंशन कम की जाए। ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी तो जो लीकेज है, which is a milder word of saying corruption, ये करप्शन इसी तरह कम होगी जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अवाम पर जोर दिया कि वो टैक्स अथॉरिटी से ताउन करें क्योंकि 24 करोड़ आबादी के मुल्क में कोई भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें इस किस्म की सहूलत और उस किस्म की हम जो शफाफियत है वो लेकर आएँ ताकि हम इसको जो आगे लेके जाए। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि हुकूमत तमाम सूबों की मसावी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलक ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की सियासत, समाजी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि माली मसाइल, NFC एवार्ड और ज़म अजला के तरक्याती फंड्स के इजरा पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पंजाब में मुनज़्ज़म जराइम में कमी और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी दी है। 7 किस्म के मुनज़्ज़म जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। लाहौर में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहकाम जारी किया कि CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाए। जुर्म सरजद होने की सूरत में सर्वेलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वक़ूआ पर पहुंचेगा। कदर और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। ये महकमा सूबे में मुजरिमों से मुतल्लिक डाटा मैनेजमेंट का भी जिम्मेदार होगा। इजलास में वज़ीर आला ने महकमे में भर्तियों की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाएंगे। कानून इंसाफ और इंसानी हुकूक के वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों, ख़वातीन और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी की गई है। वफाकी वज़ीर ने जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास से खिताब किया। तफसील शेयर कर रहे हैं एजाज हुसैन। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के 58वें आला सतह इजलास से खिताब करते हुए कानून इंसाफ और इंसानी हकूक़ के वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर क़वानीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में साफ सुथरे और सेहतमंदाना माहौलियात की फराहमी को बुनियादी हक करार दिया गया है। Pakistan's abiding commitment to human rights is enshrined in our constitution. The 26th amendment to our constitution has recognized a clean, healthy and sustainable environment a fundamental right.
To empower women across all sections of society, a cross-cutting approach emphasizing education, financial inclusion, social safety, and access to health care has been adopted. वफाकी वजीर ने हक खुद इरादियत को ताकत के जरिए दबाने के अमल को इंसानी हुकूक के पामाली करार देते हुए मसला फ़लस्तीन और कश्मीर को बैन अक़वामी क़वानीन और उसूलों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। Israel's actions leading to forcible displacement and demographic re-engineering are outrightly unjust. The contours of a just, comprehensive and lasting peace in the Middle East have long been agreed by the international community. They must be implemented. In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the denial of Kashmiris' right to self-determination is making a mockery of UN Charter, UNSC resolutions and international law. कानून और इंसानी हकूक के वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण ने आलमी सतह पर मजहबी अदम बर्दाश्त बिलखसूस इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के इम्तियाजी सलूक और मजहब या अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के पसे पर्दा असल हक़ाइक़ आश्कार हो गए हैं। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और फ़ज़ाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। अगले ही रोज़ पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तीरंदाजी का तारीख साज दिफा किया, एक भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। भारत ने हकीकत के एतराफ़ की बजाय पाकिस्तान के F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भारतीय जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भाना फोड़ दिया। भारत के दिफाई माहिरीन ने भी अपनी फ़ज़ाइया को झूठा और मनगढ़ंत दावा मुस्तरद किया। साबिक भारतीय जनरल अता हसनैन ने कहा कि हमें अगर किसी ने इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाना सिखाया तो वो पाकिस्तान का ISPR है। सीनियर भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाइन ने ट्वीट में कहा कि मोदी का मकसद जंग का ड्रामा रचाकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हालिया बयानात पर सख्त रद्दअमल देते हुए उन्हें एक बार फिर बलोचिस्तान के दौरे की दावत दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि खुदारा बलोचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ मैंने ज़ाती तौर पर आपको फ़ोन करके बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन शायद आप समझने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत बेंच के अरकान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट में FIR का तसव्वुर नहीं, इंसदारी दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, वो कल भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की जल्द समाअत के लिए पॉलिसी तश्कील देते हुए वाज़ेह किया है कि ज़मानत, मुकदमात की मुंतकली, तस्फिया और फैमिली मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। ऐसे मुकदमात में जल्द समाअत के लिए दरखास्त देने की जरूरत नहीं। इसी तरह इंतखाबी उज़रदारियां बेंच की दस्तयाबी पर समाअत के लिए जल्द मुकर्रर की जाएंगी और उनके लिए भी जल्द समाअत की दरखास्त की जरूरत नहीं। एक ब्रेक, जिसके बाद हमारी साथी एंकर आपको आगाह करेंगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपडेट से। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल बालाकोट से। 26 फरवरी 2019 को मकार दुश्मन इंडिया ने रात के अंधेरे में इधर पेलोड गिराया। सुबह के हमें पता चला जी कि हमारा दुश्मन सबकी दिखाते हुए भाग गया। यहाँ के मुकामी लोगों के ज़रा वो गम गुस्से में थे कि शायद इंडिया ने हमारे ऊपर वो कर दिया, अल्लाह अकबर के नारे वगैरह लगा रहे थे और उन्होंने आर्मी से दरख्वास्त की कि इसका कोई ना कोई रिएक्शन लिया जाए। तो ये रिस्पॉन्स था कौम का, ये पाकिस्तानी कौम का था, ये किसी फौज का या किसी त्यारे का क्रॉस करना नहीं था। ये पूरे पाकिस्तान का जो ज़हन है, जो पूरे पाकिस्तान की सोच है। दुरुस्त, हर वक्त। नासिन, कज़ाफी स्टेडियम में एक मरतबा फिर चौकों और छक्कों की बारिश जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में
अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 326 रन का हदफ दिया है। इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन बनाए हैं और अफगानिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख की सबसे बड़ी और इनफरादी इनिंग्स खेली है। अफगानिस्तान की बैटिंग की तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी अपनी इस रिपोर्ट में। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए। यह अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी इवेंट्स में सबसे बड़ा स्कोर है। 37 के मजमूई स्कोर पर इब्तिदाई 3 विकेटें गिरने के बाद इब्राहिम ज़दरान और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 103 रन की शराकत कायम की। There we go. That's a beautiful strike. Oh, lovely check drives. Gives himself room. And up and over mid-off. That is a beautiful strike. हशमतुल्लाह शाहिदी 40 रन बनाकर आउट हुए। Full, straight, Rashid brought back into the attack to do exactly that. इब्राहिम ज़दरान ने चैंपियंस ट्रॉफी तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। उन्होंने 146 गेंदों पर 177 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे। Turns into the onside. It's a quick one, but it's safe enough for Ibrahim Zadran. A century against England. इब्राहिम ज़दरान ने वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज भी हासिल किया। That's a terrific shot down the ground. Comes in and goes the distance. Short, pulled away. Oh, just over. Swings it away leg side. Punishment here for Root. अजमतुल उमर ज़ई ने 41 और मोहम्मद नबी ने 40 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। Slower ball. Oh, it's a beautiful shot. Over long on. What an innings this young man is playing. मैच इस वक्त जारी है। पीटीवी स्पोर्ट्स से एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है और अगर मैच के हवाले से बात करें तो इस वक्त इंग्लैंड की टीम कुछ मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड की जानिब से हदफ के ताकों में 280 रन बनाए थे और इंग्लैंड की 6 विकेट्स गिर चुकी हैं। 45 ओवर्स का खेल भी खेला जा चुका है और अगर आज इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की बात करें तो कुछ हमें मुश्किलात का शिकार नजर आई है। फिल सॉल्ट सिर्फ 12 रन बना सके हैं। इस वक्त जो रूट हैं क्रीज पर मौजूद और उनका साथ दे रहे हैं दूसरे खिलाड़ी। बेन डक की बात करें जिन्होंने पिछले मैच में 166 रन बनाए थे लेकिन आज वो सिर्फ 38 रन बना पाए हैं। इसी तरह से जेमी स्मिथ सिर्फ 9 रन बना सके हैं और मैच में कुछ ही देर बाद टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। और ये मैच आज अगर बैटिंग की बात करें तो अफगानिस्तानी बैटर्स की जानिब से बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया गया और मैच के हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने आखिरी मैच के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम कल पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होगी। यह मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और इवेंट में वाहिद कामयाबी के लिए मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब तक 39 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं जिनमें से पाकिस्तान ने 34 और बांग्लादेश ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान वाहिद वनडे मैच 2003 में खेला गया था जो कि 5 विकेट से ग्रीन शर्ट्स ने अपने नाम किया था। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि कोई भी खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस के टीम में नहीं आया। पिंडी स्टेडियम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जब टीम तौक़ुआत के मुताबिक नहीं खेलती तो सबसे ज्यादा दुख खिलाड़ियों को ही होता है। जब मैच से पहले तो हम सारे होपफुल होते ही हैं और टीम को बैक भी करते हैं, लेकिन जब टीम खेलती है उसमें फिर उस तरह के रिजल्ट नहीं आते तो सबसे ज़्यादा अफसोस उस प्लेयर को होगा जिससे परफॉर्म नहीं हुआ उस तरह से। ज़ाहिर है प्लेयर्स भी काफ़ी उनको हर्ट है, उनको भी अफसोस है और आगे जो कौम को जो मैसेज है वो यही है कि आप कोशिश कर सकते हैं और अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं। खेल के मैदान से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इस वक्त आपको लिए जाएंगे रिजवान और नासिया की जानिब। बहुत शुक्रिया समीना आपका। नाज़रीन, खबरनामे में अब कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की, जहां पर भारत ने फौजी कार्रवाइयों की जो मजीद उसको तेज़ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिविल सोसाइटी के अरकान का कहना है कि मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों से जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आने के भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दावों की नफ़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेज की पेशा वराना तैयारियों का जायजा लेने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय फौज के अफसरों को करनाल, पुलवामा और राजौरी के दौरों से भारत के मजमून
मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी होती है। काबिज भारतीय हुकाम ने मकबूजा कश्मीर में खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान किया है, जिस पर छापों, जबरी गिरफ्तारियों, दौरान हिरासत, गुमशुदगियों के वाक़यात में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को दफ़ा 370 पर उनके हालिया बयान पर कड़ी तनकीद का सामना है। कश्मीरी अवाम उनके बयान को इंतखाबात से कबल उनके साथ किए गए वादों से इनहराफ समझते हैं। PDP रहनुमा अब्दुल वहीद परा समेत मकामी सियासतदानों ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर अफसोस का इजहार किया है। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने जाम शोरों में कायम बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर, अदायगी मरकज़ और डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने मुत्तलका हुकाम को मुस्तहिक ख़वातीन के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। रुबीना खालिद ने कहा कि बेनज़ीर कफ़ालत मनसूबे के जरिए सहमाही किस्त 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, उन्हें पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गुज्जर यूथ फोरम के ज़रिए तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने इस्लाफ की कुर्बानियों और कौमी हीरोज़ की खिदमत को उजागर करने पर जोर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन में सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल, रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन समेत मुल्क भर से और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से 30 खुशनसीब पाकिस्तानी उम्रे की सादत हासिल करेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी नम्रा सुहेल। अल्लाह के घर का तवाफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करने वाले ये तमाम ज़ायरीन खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के रमजान मुबारक में खुसूसी मेहमान होंगे। अल्लाह के इन खास मेहमानों के मुतबरक सफर से पहले अलविदाई तकरीब का इनेकाद सऊदी सफारत खाने में किया गया। Will be inshallah 30 people from Pakistan, and inshallah will be travel tomorrow. Will be inshallah visit Medina the first. And inshallah we'll be perform Umrah inshallah about 10 days inshallah we'll be spending Mecca and Medina inshallah. The relation between two brotherly country very deep relation. खुशबख्त उम्रा ज़ायरीन रमजानुल मुबारक में हरमैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल होने पर खुश भी थे और जज्बात से लबरेज भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला उम्रा है ज़िंदगी का, तो मैं सऊदी एम्बेसी और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया उम्रे का। इसीलिए खुशी ये हुई है कि इन्होंने किसी खातून के लिए भी इन्होंने अप्रूव कर दिया है भेजने के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा अदायगी के मौके की फराहमी दोनों मुल्कों के अवाम को मज़ीद करीब लाने का बाइस बनेगी। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। आपको आगाह करें कि महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की तवक्को है, जबकि चंद मकामात पर यह आलाबारी हो सकती है। शिमाल मशरकी मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त